موٹر وے M9 پر حادثے نے 3 گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ ایک ہی گھر کے دادی اور 2 سالہ پوتا حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ متوفی کی بہن کا سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم لوگ مورو شادی میں گئے تھے، کل ہم ساتھ آ رہے تھے کہ یہ اگلے روز آنے کا کہہ کر بس سے اتر گئیں۔ مزید متوفیہ کی بہن نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ مجھے پہلے کچھ پتا نہیں تھا، میں گھر پہ تھی، ہم کل آئے تھے، ساتھ آ رہے تھے، گاؤں میں سے مورو میں سے آئے تھے۔ وہ مورو میں سے اپنے دیور کے گھر گئی تھی، اس کا پوتا جو تھا اس کی طبیعت خراب تھی، دوائی لینے کے لیے وہ وہیں پہ رک گئی تھی، تو ہم آ گئے کل، وہ آج آنے والے تھے، تو پھر آ جائے تو راستے میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ سے 8 بہن بھائی، 3 بھائی ہیں اور 5 بہنیں، بڑی بہن یہ تھی، سب سے بڑی یہی تھی۔ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کے پوتے کی طبیعت صحیح چلے ساتھ چلتے، کہتی ہے نہیں اس کی دوائی لے لو، میرا بیٹا بولے گا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں، اس کی دوائی لے کر بعد میں آ جانا، تو اسی وجہ سے وہ رک گئے۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ حادثہ ہوگا۔ 4 سالہ نہیں ہے، وہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک، چھوٹا ہے۔ اس کی دوائی لینے کے لیے وہ وہیں پہ رکے، اس کو بخار اور زکام ہو گیا تھا، تو اس نے بولا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی دوائی لے لیں بعد میں چلیں گے۔ ہم شادی پہ گئے تھے گاؤں، میرے دیور کی شادی تھی، تو بس اچانک سے یہ حادثہ ہو گیا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میرے چاچو نے فون کیا کہ میں نے سمجھا، کسی نے مجھے بولا کہ اس کا ایکسیڈنٹ، میں نے بولا مجھے نہیں پتا۔ پھر میں نے فون کر کے بھانجے سے پوچھا، چھوٹے سے، وہ رو رہا تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں نے اس کو کال کی اپنے شوہر کو، اس نے کال نہیں اٹھائی۔ جب یہ گھر پہ آئے پھر میں نے اس سے پوچھا، اس نے کچھ نہیں ہوا، بس چلو اسپتال چلتے ہیں۔ میں نے کہا شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی چوٹیں لگی ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ چلے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے چینی کی نئی سرکاری قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں، تاہم ریٹیلرز نے ان قیمتوں پر نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے۔ دوسری جانب شہری چینی کی منمانی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ مصنوعی مہنگائی پر قابو پانا ہے، تاہم ریٹیلر ایسوسی ایشن نے سرکاری نرخوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ سیکرٹری ریٹیلر ایسوسی ایشن فرید قریشی کا کہنا ہے کہ مقرر کی گئی قیمتوں میں منافع کی شرح انتہائی کم ہے۔ جو کمشنر کراچی کا ریٹ ہے اس پر مجبوراً بیچنا پڑے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 138 روپے بھی لے کر کم از کم 3-4 روپے بوری پہ خرچ ہو جاتا ہے 1 کلو پر، تو جب کہ اس کو کمشنر کراچی کو چاہیے تھا کہ اس کے ریٹ کو دوبارہ ریوائز کر کے اس کو ریٹ کو فکس کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی منمانی قیمتوں پر دستیاب ہے۔ نہیں مل رہی نا، 160 روپے، 170 روپے، 180 روپے، یہ ریٹ اپنا ریٹ بنایا ہوا۔ فرید قریشی کا کہنا تھا کہ دکاندار سرکاری قیمتوں پر چینی کی فروخت کرنے کے پابند ہیں اور مجبوراً ان نرخوں پر عمل کریں گے، تاہم حکومت کو تاجر برادری کے تحفظات دور کرنے چاہیے۔ کیمرامین نوید کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے رکن رانا طارق نے کہا ہے کہ ایک ماہ میں ڈیزل 18 روپے مہنگا ہونے سے رمضان میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اشیاء خورنوش پر اثر انداز ہوگا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ مہنگائی میں اضافے کا خدشہ، فوری اقدامات ناگزیر۔ کراچی گوڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے رکن رانا طارق کا کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے رمضان المبارک میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ کے دوران ڈیزل 18 روپے مہنگا کیا گیا، جس کے اثرات اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی پڑیں گے۔ ایک ماہ میں 2 مرتبہ ڈیزل بڑھا ہے 18 روپے، تو ٹرانسپورٹر پریشان ہے کہ ہم رمضان کا احترام کے اندر خلل پیدا نہ کریں، یعنی کہ ہم اگر کرائے بڑھائیں گے تو سیدھی مہنگائی جو عوام پر جائے گی۔ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ملک ہیں وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلیف دیتے ہیں، لیکن مہنگائی شروع ہی ڈیزل سے ہوتی ہے۔ رانا طارق کا کہنا تھا کہ ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹر شدید پریشانی کا شکار ہیں اور اس کا بوجھ بالآخر عام شہری پر ہی پڑے گا۔ دیکھیں ڈیزل مہنگا ہونے سے، دیکھیں دالیں، چاول، سبزیاں، دوائیاں، ہر چیز ٹرانسپورٹیشن جو ہے ہم گڈ ٹرانسپورٹ سے کرتے ہیں، ٹرالر سے کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جب چیزیں جائیں گی تو ظاہر ہے مہنگی ہوگی، عوام تک مہنگی ہی پہنچیں گی، ظاہر ہے 2-4 روپے 5 روپے ریٹ تو بڑھے گا ہر چیز کے اوپر۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو فی الفور جو ہے ڈیزل کو نیچے لائے تاکہ ہم کرایہ نہ بڑھائیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈیزل کی قیمتیں کم کر کے ٹرانسپورٹرز اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین قدرت جمالی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد میں رمضان سے قبل عبادات سے جڑی اشیاء کی مانگ بڑھ گئی۔ شہر میں تسبیح، جائے نماز، عطر، ٹوپیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ دکاندار کہتے ہیں رمضان سے قبل اور رمضان میں شہریوں کا رش لگا رہتا ہے۔ مزید رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں۔
मार्केटों में जाए नमाज की खरीदारी, तस्बीह और इतर के स्टॉल्स पर रश, टोपियों की दुकानों पर खरीदारों की आमद। रमजान करीब आते ही शहर की दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारों का रश नजर आने लगता है। लोग खुसूसी इबादत के लिए जाए नमाज समेत मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमजान से कबल ही इबादत से मुतालिक अशिया की डिमांड बढ़ जाती है और पूरे महीने में दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहता है। लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं, इबादत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर टोपिया, इतर और तस्बीह इनकी मांग बढ़ जाती है हमारे इस मार्केट में। शहरियों का कहना है कि वो रमजान में इबादत के लिए ज़रूरी अशिया खरीद रहे हैं ताकि घरों में इबादत का माहौल कायम रखा जा सके। कुरान शरीफ ले रहे हैं और ये टोपियाँ वगैरह हैं, ये जो रमज़ान के हिसाब से वो चीज़ें खरीद ले आए। रमज़ान आने वाला तो इरादा किया है कि इंशाल्लाह अभी ख़रीदने आया हूँ इतर और काउंटर वगैरह तस्बीह लेने के लिए अपने भाइयों के लिए, ताकि रमज़ानों में जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उसमें ज़्यादा अफजल है। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही इबादत की तैयारियों में तेज़ी आ गई है और शहर की मार्केटों में रूहानियत से जुड़ी अशिया की खरीदारी का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। कैमरामैन अमजद के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। तलबा को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अब्दुल हई फाउंडेशन की जानिब से अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत GSS स्कूल के लिए नई स्कूल बस अतिया की गई है। इस बस सर्विस के बाकायदा इफ्तिताह की तकरीब मुबारक विलेज में मुनक्किद हुई। राबील सदीद की रिपोर्ट। फरहामी के लिए अहसन इकदाम, GSS स्कूल के लिए नई बस अतिया। बस सर्विस के बाकायदा इफ्तिताह की तकरीब मुबारक विलेज में मुनक्किद हुई, जिसमें रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार अहमद खोड़ो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था कि हुसूल इल्म तक आसान रसाई हर तालिब इल्म का बुनियादी हक है और ऐसे फलाही इकदामात से खास तौर पर पसमानदा इलाकों के बच्चों को तालीम जारी रखने में नुमाया मदद मिलेगी। ये यकीनन ये स्कूल ऐसा नहीं होगा जब एडॉप्ट करने वाले को मिला था। इसने अपनी मेहनत करके रंग रूप करवाया, सहूलतें दी, यहाँ फर्श लगा पड़ा है, यहाँ फूल है, यहाँ खुशी होती है देखते हुए। इंतजामिया के मुताबिक ये बस सर्विस 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले तुलबा को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करेगी। 25 किलोमीटर में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं, तो हमने सोचा कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक फ्री बस सर्विस स्टार्ट की जाए। तो इंशाल्लाह 25 किलोमीटर के जितने भी गोट हैं उनके बच्चे, उनको हम फ्री एडमिशन देंगे, कोई पैसे चार्ज नहीं करते, ना अभी भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी फैसिलिटी तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए फ्री बस है। अदाकारा सादिया इमाम का कहना था कि बस सर्विस से न सिर्फ बच्चों की हाजिरी में इजाफा होगा बल्कि वालिदैन के सफरी अखराजात में भी कमी आएगी। यहाँ वो बच्चे जो गाड़ियों की शक्ल भी नहीं देख पाते थे, उनको एक बस मैसर हो रही है जो उनको उनके गोद से उठाएगी, फ्री एजुकेशन के लिए लाएगी, ना कोई पैसे लेगी। तो मेरा ख्याल है कि तो बहुत ही कमाल चीज़ हो गई है। मुबारक विलेज जहां पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात नापैद हैं, वहां फ्री बस सर्विस और स्कूल किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ राबेल सदीद, सिटी 20। मोटरवे M9 पर हादसे ने 3 घरों के चिराग कुल कर दिए। एक ही घर के दादी और 2 साला पोता हादसे में जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी के बहन का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि हम लोग मोरो शादी में गए थे, कल हम साथ आ रहे थे कि ये अगले रोज़ आने का कहकर बस से उतर गई। मज़ीद मुतवफ़िया की बहन ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मुझे पहले कुछ पता नहीं था, मैं घर पे थी, हम कल आए थे, साथ आ रहे थे, गाँव में से मोरो में से आए थे। वो मोरो में से अपने देवर के घर गई थी, उसका पोता जो था उसकी तबीयत ख़राब थी, दवाई लेने के लिए वो वहीं पे रुक गई थी। तो हम आ गए कल, वो आज आने वाले थे, तो फिर आ जाए तो रास्ते में याद सब हम तो माशाल्लाह से 8 बहन भाई, 3 भाई हैं और 5 बहनें, बड़ी बहन ये थी, सबसे बड़ी यही थी। तो मैंने इसको बोला कि आपके पोते की तबीयत सही, चले साथ चलते। कहती है नहीं, उसकी दवाई ले लो, मेरा बेटा बोलेगा कि उसकी तबीयत सही नहीं, उसकी दवाई लेकर बाद में आ जाना। तो इसी वजह से वो रुक गए। उसे क्या पता था कि ये हादसा होगा। 4 साल नहीं है, वो 2 साल का भी नहीं हुआ है अभी तक, छोटा है। उसकी दवाई लेने के लिए वो वहीं पे रुके, उसको बुखार और जुकाम हो गया था, तो उसने बोला कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी दवाई ले लें, बाद में चलेंगे। हम शादी पे गए थे गांव, मेरे देवर की शादी थी, तो बस अचानक से ये हादसा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे चाचू ने फ़ोन किया कि मैंने समझा, किसी ने मुझे बोला कि इसका एक्सीडेंट, मैंने बोला मुझे नहीं पता। फिर मैंने फ़ोन करके भांजे से पूछा, छोटे से, वो रो रहा था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने इसको कॉल की, अपने शोहर को, उसने कॉल नहीं उठाई। जब ये घर पे आए फिर मैंने इससे पूछा, इसने कुछ नहीं हुआ, बस चलो अस्पताल चलते हैं। मैंने कहा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोटें लगी हैं, मुझे ये पता नहीं था कि वो चले।
कमिश्नर कराची की जानिब से चीनी की नई सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं, ताहम रिटेलर्स ने इन कीमतों पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है। दूसरी जानिब शहरी चीनी की मनमानी कीमतों से परेशान हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मसनूई महंगाई पर काबू पाना है, तहम रिटेलर एसोसिएशन ने सरकारी निर्खों पर नजरसानी का मुतालबा किया। सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि मुकर्रर की गई कीमतों में मुनाफे की शरह इंतहाई कम है। जो कमिश्नर कराची का रेट है उस पर मजबूरन बेचना पड़ेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि 138 रुपये की लेकर कम अज़ कम तो 3-4 रुपये बोरी पे खर्च हो जाता है 1 किलो पर। तो जबकि उसको कमिश्नर कराची को चाहिए था कि इसके रेट को दोबारा रिवाइज करके इसको रेट को फिक्स किया जाए। शहरियों का कहना है कि चीनी मनमानी कीमतों पर दस्तयाब है। नहीं मिल रही ना, 160 रुपये, 170 रुपये, 180 रुपये ये रेट अपना अपना रेट बनाया हुआ। फरीद कुरैशी का कहना था कि दुकानदार सरकारी कीमतों पर चीनी की फरोख्त करने के पाबंद हैं और मजबूरन इन नरखों पर अमल करेंगे। ताहम हुकूमत को ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची गुड्स करियर एसोसिएशन के रुकन राना तारिक ने कहा है कि एक माह में डीजल 18 रुपये महंगा होने से रमज़ान में महंगाई बढ़ने का खदशा है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफा अशिया खुरनोश पर असरअंदाज होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का डीजल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। महंगाई में इजाफे का खदशा फौरी इकदामात नागुज़ीर। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के रुकन राना तारिक का कहना था कि डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से रमजान मुबारक में महंगाई बढ़ने का खदशा है। उन्होंने कहा कि एक माह के दौरान डीजल 18 रुपये महंगा किया गया, जिसके असरात अशिया खुरनोश की कीमतों में भी पड़ेंगे। एक माह में 2 मरतबा डीजल बढ़ा है 18 रुपये। तो ट्रांसपोर्टर परेशान है कि हम रमज़ान का एहतराम के अंदर खलल पैदा ना करें, यानी कि हम अगर किराए बढ़ाएंगे तो सीधी महंगाई जो आवाम पर जाएगी। दुनिया के अंदर कहीं पे भी आप देख लें, मुसलमानों के अलावा जो भी मुल्क हैं वो भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लीव देते हैं, लेकिन महंगाई शुरू ही डीजल से होती है। राना तारिक का कहना था कि डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर शदीद परेशानी का शिकार हैं और उसका बोझ बिलाखिर आम शहरी पर ही पड़ेगा। देखें, डीजल महंगा होने से देखें दालें, चावल, सब्जियां, दवाइयाँ, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन जो है हम गुड ट्रांसपोर्ट से करते हैं, ट्रालर से करते हैं। अच्छा, उसमें जब चीज़ें जाएंगी तो ज़ाहिर है महंगी होगी, आवाम तक महंगी ही पहुंचेंगी। ज़ाहिर है 2-4 रुपये 5 रुपये रेट तो बढ़ेगा हर चीज़ के ऊपर। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको फिलफौर जो है डीजल को नीचे लाए ताकि हम किराया ना बढ़ाएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डीजल की कीमतें कम करके ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में रमज़ान से कबल इबादत से जुड़ी अशिया की मांग बढ़ गई। शहर में तस्बीह, जाय नमाज, इतर, टोपियों की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं रमज़ान से कबल और रमज़ान में शहरियों का रश लगा रहता है। मज़ीद रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। मार्केटों में जाय नमाज की खरीदारी, तस्बीह और इतर के स्टॉल्स पर रश, टोपियों की दुकानों पर खरीदारों की आमद। रमजान करीब आते ही शहर की दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारों का रश नजर आने लगता है। लोग खुसूसी इबादत के लिए जाय नमाज समेत मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमजान से कबल ही इबादत से मुतालिक अशिया की डिमांड बढ़ जाती है और पूरे महीने में दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहता है। लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं, इबादत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर टोपिया, इतर और तस्बीह इनकी मांग बढ़ जाती है हमारे इस मार्केट में। शहरियों का कहना है कि वो रमजान में इबादत के लिए ज़रूरी अशिया खरीद रहे हैं ताकि घरों में इबादत का माहौल कायम रखा जा सके। कुरान शरीफ ले रहे हैं और ये टोपियाँ वगैरह हैं, ये जो रमज़ान के हिसाब से वो चीज़ें खरीदने आए हैं। रमज़ान आने वाला तो इरादा किया है कि इंशाल्लाह अभी ख़रीदने आया हूँ इतर और काउंटर वगैरह तस्बीह लेने के लिए अपने भाइयों के लिए, ताकि रमज़ानों में जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उसमें ज़्यादा अफजल है। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही इबादत की तैयारियों में तेज़ी आ गई है और शहर की मार्केटों में रूहानियत से जुड़ी अशिया की खरीदारी का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। तलबा को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अब्दुल हई फाउंडेशन की जानिब से अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत GSS स्कूल के लिए नई स्कूल बस अतिया की गई है। इस बस सर्विस के बाकायदा इफ्तिताह की तकरीब मुबारक विलेज में मुनक्किद हुई। राबील सदीद की रिपोर्ट।
फरहामी के लिए एहसन इकदाम। GSS स्कूल के लिए नई बस अतिया। बस सर्विस के बाकायदा इफ्तिताह की तकरीब मुबारक विलेज में मुनक्किद हुई, जिसमें रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार अहमद खोड़ो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था कि हुसूल इल्म तक आसान रसाई हर तालिब इल्म का बुनियादी हक है और ऐसे फलाही इकदामात से खास तौर पर पसमानदा इलाकों के बच्चों को तालीम जारी रखने में नुमाया मदद मिलेगी। ये यकीनन ये स्कूल ऐसा नहीं होगा जब एडॉप्ट करने वाले को मिला था। इसने अपनी मेहनत करके रंग रूप करवाया, सहूलतें दी, यहाँ फर्श लगा पड़ा है, यहाँ फूल है, यहाँ खुशी होती है देखते हुए। इंतजामिया के मुताबिक ये बस सर्विस 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले तुलबा को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करेगी। 25 किलोमीटर में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं तो हमने सोचा कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक फ्री बस सर्विस स्टार्ट की जाए। तो इंशाल्लाह 25 किलोमीटर के जितने भी गोट हैं उनके बच्चे, उनको हम फ्री एडमिशन देंगे, कोई पैसे चार्ज नहीं करते, ना अभी भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी फैसिलिटी तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए फ्री बस है। अदाकारा सादिया इमाम का कहना था कि बस सर्विस से न सिर्फ बच्चों की हाजिरी में इजाफा होगा बल्कि वालिदैन के सफरी अखराजात में भी कमी आएगी। यहाँ वो बच्चे जो गाड़ियों की शक्ल भी नहीं देख पाते थे, उनको एक बस मैसर हो रही है जो उनको उनके गोद से उठाएगी, फ्री एजुकेशन लाएगी, ना कोई पैसे लेगी। तो मेरा ख्याल है कि तो बहुत ही कमाल चीज़ हो गई है। मुबारक विलेज जहां पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात नापैद हैं, वहां फ्री बस सर्विस और स्कूल किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ राबिल सदीद, सिटी